سب سے پہلے بات کرتے ہیں ورک پلیس ہراسمنٹ کے حوالے سے، اور یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو کہ خواتین کو بڑی شدید اذیتناک صورتحال میں مبتلا کر دیتی ہے، اور خواتین بعض اوقات صرف بدنامی کے ڈر سے اپنے اوپر ہونے والی ہراسمنٹ، اپنے خلاف ہونے والی ہراسمنٹ پہ بات نہیں کرتی۔ بالکل شفاعت، نہ صرف یہ کہ بدنامی کے خوف سے جو ہے وہ خواتین ہراسمنٹ کے والے سے بات نہیں کرتی، کیونکہ عمومی طور پہ ہماری سوسائٹی کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی لڑکی اپنے اوپر ہونے والی ہراسمنٹ کے والے سے بات کرتی ہے تو سوسائٹی سب سے پہلے تو اسی کو مورد الزام ٹھہراتی ہے کہ یقیناً تمہارے رویے کی وجہ سے تم ہراسمنٹ کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ بہت دور کی بات ہے، سب سے پہلے لوگ یہی کہتے ہیں گھر سے باہر نکلی ہو تو یہ تو ہوگا۔ ایگزیکٹلی، لوگ نارملائز کرتے ہیں اس چیز کو۔ تو جناب 50%، 51% آبادی ہماری خواتین پر مشتمل ہے۔ 51% آبادی کو گھر بٹھا کے ترقی کے خواب دینا بے وقوفی۔ بالکل۔ تو وہ خواتین جو اپنی ہراسمنٹ کے خلاف اب بات کر رہی ہیں، ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ ایک خاتون نے نہ صرف یہ کہ اپنے خلاف ہونے والی ہراسمنٹ پر اپنا کیس خود لڑا، بلکہ وہ جیتا بھی۔ اس حوالے سے ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ حوالے سے مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر امرین قریشی، اور ہم ان سے جانیں گے کہ ایگزیکٹلی ہراسمنٹ کی ہم بات تو بہت زیادہ کرتے ہیں، کون کون سی چیزیں، کون کون سی باتیں، کون کون سے ایکٹس جو ہیں وہ ہراسمنٹ کے زمرے میں آتی ہیں، یہ بھی آپ لوگوں کے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تھینک یو سو مچ امرین فار جوائننگ اس۔ امرین، یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں جو لوگ ہراسمنٹ کا مطلب سمجھتے ہیں وہ یہ کہ انلیس اور انٹل آپ پر کسی قسم کی فزیکل ایڈوانسمنٹ نہیں ہوتی، آپ کو کوئی بھی ہراس نہیں کر سکتا، وچ از رانگ۔ سو آپ ذرا، میں چاہوں گی ذرا کھل کے ذرا پہلے جو وہ خواتین جو کہ گھر میں بیٹھی ہیں، جو کہ کام پہ جاتی ہیں، دفتر پہ جاتی ہیں، ان کو بتا ضرور دیں کہ ہراسمنٹ ہوتی کیا چیز ہے۔ Thank you, Madiha and Shafat, for inviting me. Before I actually answer that question, تھوڑی سی آپ کی رپورٹ میں یہ جو خاتون کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے یہ کیس لڑا ہے، میں تھوڑا سا وہ مس لیڈنگ ہے، اور بڑا ضروری ہے اس وقت یہ بات کرنا، بیکاز جو وکٹمز ہیں ان کو ایک غلط پرسیپشن جا رہا ہے بیکاز آف دا فیکٹ کہ کوئی وکیل نہیں تھا میڈم کے پاس، اور میڈم نے یہ خود دلائل دی ہے جن کی وجہ سے وہ جیتی ہیں۔ سو اس پہ جو میں نے دیکھا، انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی کہیں پہ یہ بات کی ہے۔ سو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ٹیک دس اپرچونٹی ٹو ایٹ لیسٹ کلیریفائی کہ ان کی ایک پوری لیگل ٹیم تھی، اور بالکل اینڈ پہ جہاں پہ کلوزنگ آرگومنٹس تھے وہاں پہ میڈم نے خود ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی جس کی بنا پہ وہ جیتے تھے۔ ریزن وائی ایم سیئنگ دس مدیحہ، بیکاز وکٹمس کو کہیں پہ یہ نہ لگے کہ یہ جو سچویشن جب ارائز ہوتی ہے اس میں یہ خود سے عدالت جا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں بڑی کمپلیکیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں اور بہت زیادہ انٹریکسی ہوتی ہے لا کی، اور اس میں آپ کو وکیلوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسپیشلی وہ جو اسپیشلائز کریں۔ سو آئی واز ون آف the people who was in madam's legal team. I was there since 2018 جب سے انہوں نے یہ کیس دائر کیا، اور ان کی جو جرا ہو گئی سارے وٹنسز کی، اور یہ پاکستان میں one of the only cases ہے جہاں پہ بہت اچھا ان کو فائن کیا گیا، جو 7 وٹنسز تھے۔ اور یہ اچھا، ویسے امرین مجھے یہ بتائے گا، پرابلم آپ کو پتا ہے یہاں پہ یہ بھی تو ہے نا کہ ایک تو اگر کوئی عورت ہراسمنٹ کے خلاف آواز اٹھانا چاہے، پہلے تو اس کو گھر والے سپورٹ نہیں کرتے، اگر گھر والے سپورٹ کریں سوسائٹی سپورٹ نہیں کرتی، جب وہ بڑی ہمت کر کے، ہمت جتا کر جب وہ کورٹ تک پہنچتی ہے تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اپنے وکیل کی جانب سے کچھ نہ کچھ سے مکمکا ہو جاتا ہے کہ ڈیلنگ ٹیکٹکس جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں، تو اس بیچاری کا حوصلہ بہت زیادہ شکن ہوتا ہے۔ ہاں، اینڈ دیٹ از وائی آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ اس وقت یہ چیز ضرور ہائی لائٹ کرنا، کیونکہ ہم لوگوں نے میڈم کے لیے فرام دا فرسٹ ڈے ہم لوگ ان کے ساتھ تھے۔ بیرسٹر تیمور مرزا ہیں کراچی سے جنہوں نے ان کا کیس لڑا، اور ایک دن تو 5 days کنزیکٹیو جرا کی جو دوسری پارٹی ہے، جس کی وجہ سے ایونچولی ماشاء اللہ سب کے سارے وٹنسز کو 1 لاکھ جرمانہ ہوا۔ سو آئی تھنک یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وکیل نہیں ہے اور ان کو لٹرلی چارج نامنل فی جو منشیانہ ہوتا ہے، اور وی ور دیئر ٹو ہیلپ ہر۔ سو یہ وکٹمس کو میسج ضرور جانا چاہیے کہ وہاں یہاں پہ وکیل ایسے ہیں جو ایکچولی کوئی ہینڈسم سیلری یا کمنگ بیک ٹو ہراسمنٹ، تھینک یو سو مچ، آپ نے کلیئرفائی کیا، لیکن ذرا ہراسمنٹ کے حوالے سے ذرا ہماری جو خواتین ہیں ان کو یہ بتائے گا کہ کون کون سے ایکٹس ہیں جو ہراسمنٹ کے زمرے میں آتے ہیں۔ اچھا جی، دیکھیں ہراسمنٹ اگر میں بڑے لیٹ ٹرم میں ایکسپلین کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ ہراسمنٹ ایک ریٹن فارم میں بھی آ سکتی ہے، ایک وربل میں بھی آتی ہے، اور ایک فزیکل میں بھی آتی ہے۔ ہمارے پاس جو تھوڑا سا پرابلم یہ آتا ہے کہ جب ہم ہراسمنٹ کا مینشن کرتے ہیں، ہمارے پاس ورک پلیس ہراسمنٹ ایکٹ ہے، ہم آٹومیٹکلی اس کے اوپر چلے جاتے ہیں اور ہم اسی کو ہی ایک ہراسمنٹ کا لا سمجھتے ہیں، وچ از ایبسلیوٹلی انکریکٹ۔ پاکستان میں ورک پلیس ہراسمنٹ کے علاوہ
15 हरासमेंट लॉज हैं जो क्रिमिनल इन नेचर हैं, जिसमें इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और फाइन दोनों हो सकते हैं। और उसमें ना सिर्फ ये नहीं है कि आपका वर्बल, उसमें आपका जेस्चर्स, आपके इवन आपने बोला नहीं है मगर आप किसी को स्टेयर कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस एक एनवायरनमेंट आप ऐसे क्रिएट कर रहे हैं जिससे कोई बंदा या आदमी या औरत एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट आपको चेक करते हैं। जो चीज़ जो अदालत चेक करेगी वो ये चेक करेगी। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू सी। कानून शहादत का जो सबसे इम्पोर्टेंट, पाकिस्तान पीनल कोड का जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सेक्शन 509 है। सेक्शन 509 एक्चुअली ये बात करता है कि जब भी आपका मॉडेस्टी पे कोई भी आप पे क्वेश्चन रेज करे, आप एक्चुअली उसके लिए FIR कटा सकते हैं और इसमें आपको 3 साल की जेल हो सकती है और 5 लाख का फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। फिर आपके पास अमरीन, मैं चाहूँगा कि अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑम्बुड्सपर्सन को और कोर्ट को कंफ्यूज करते हैं। और वो नहीं समझते कि हरासमेंट का केस ऑम्बुड्सपर्सन में जाके कैसे डील किया जा सकता है और अगर आप एक सेशन कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, ये ज़रा एलैबोरेट कर दीजिएगा। अच्छा जी, ऑम्बुड्समैन सिर्फ उसलिए इस्टेब्लिश किया गया है जहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे वो एक गवर्नमेंट बॉडी है या एक प्राइवेट बॉडी, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है काम के दौरान जहाँ पे आप हरासानी आपने फील की है, वो आपका जो कंप्लेंट है वो ऑम्बुड्समैन के पास जाता है। जो क्या कहते हैं, नोयत अगर आपकी क्रिमिनल है, और ये दूसरी बात आपके पास ऑप्शन है, आप दोनों पे ट्राई कर सकते हैं। वर्क प्लेस हरासमेंट के साथ साथ आप क्रिमिनल भी केस इकट्ठा फाइल कर सकते हैं जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट जाएगा और वहाँ पे आपकी जो है प्रोसीडिंग शुरू होगी। बट ऑब्वियसली बिफोर दैट आपको FIR कटानी पड़ेगी। अंडर दैट आपको पुलिस के साथ यू हैव टू इन्वॉल्व द पुलिस इन इट, बिकॉज इसमें क्रिमिनल लायबिलिटी आती है। सही। वैसे बैरिस्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने में वक्त दिया। मेरे ख्याल से प्रोसीजर जो है वो उसको थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि इतना बड़ा जहाँ पे प्रोसीजर ज़रा सा भी लंबा हो तो जो विक्टिम हो वो कहीं अपना केस लड़ते जो हौसला है वही केस वापस ना ले ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हरासमेंट बात की जाए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने में वक्त दिया। इससे पहले जैसे बात कर रहे थे हम वर्क प्लेस हरासमेंट के हवाले से, वर्क प्लेस हरासमेंट के क्या कानूनी पहलू तो हमने देख लिया, लेकिन क्या होता है, किस तरह से ख़वातीन अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। हमारे साथ मारिया मेमन हमारे एंकर पर्सन मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया मारिया वक्त देने के लिए। मारिया, कॉर्पोरेट कल्चर में जिस तरह ख़वातीन हिरासानी का सामना करती हैं, ख़ुद ख़वातीन को भी क्लियर नहीं है और जो हिरासानी उनकी कर रहे हैं, जो हरासमेंट कर, उनको भी नहीं पता कि कौन कौन सी चीज़ें हरासमेंट के ज़मरे में आती हैं। ये किस तरह से होता है, कुछ आप अपने ख्यालात शेयर कीजिएगा। कॉर्पोरेट वर्ल्ड उसी माशरे का हिस्सा है जिसमें हम तमाम ख़वातीन जो हैं पैदा हुई हैं, यहीं पर हमने तालीम हासिल की है, यहीं पर तमाम हमारे जो तमाम रहन सहन और ये तमाम मामलात थे। तो वही जो कल्चर हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि ख़वातीन के लिए मुवाफ़िक माहौल नहीं होता, इन अ वे उनके लिए बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा चैलेंजिंग होती है एज़ कम्पेयर टू मेन। जो ख़वातीन होती हैं या बच्चियाँ होती हैं 13-14 साल की उम्र से, उसको माशरा, उनके घर वाले कहते हैं कि आपने डिफरेंट तरीके से बिहेव करना है, क्योंकि ये दुनिया की नज़र अच्छी नहीं है या ये माशरा बहुत बुरा है। हम और आप ही तो मुआशरा है और एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी उसी माशरे के अंदर है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह की हरासानी या जिस तरह की जो अनकंफर्टेबल फीलिंग का सामना आप किसी भी खातून से पूछ लें, जब वो बच्ची होगी और आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होने वाली हो, तो चाहे वो बाजार जाते हुए, किसी तालीमी इदारे पे जाते हुए, अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रही है वहाँ पर जाते हुए, घर में अगर मेल मुलाजमीन हैं, जो मर्द मुलाजमीन हैं, उनके ज़रिए भी उनको हिरासा होती हैं। फिर घर में कुछ और इर्द गिर्द ख़ानदान वाले भी होते हैं, चाहे वो मीडियट रिश्तेदार ना हो, वहाँ पर भी हिरासानी होती है। तो यही तमाम जो रवैये हैं हम अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर भी देख रहे हैं। बहुत तरीक़ों से हिरासा किया जा सकता है जी। एक तो ये कि नाजेबा जो है कमेंट्स पास कर दिए जाएं, इस तरह का एक इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया जाए, एक माहौल क्रिएट कर दिया जाए जहाँ पर जो लड़की है वो काम करने में कंफर्टेबल ना हो। कोई जेस्चर होता है, कभी कोई बेध्यानी से या जानबूझकर हाथ लगा दिया जाता है। बेशुमार एग्जाम्पल्स है, मुझे तो अब समझ नहीं आ रही कि मैं थोड़े से वक्त में इसको कैसे समेटूं। सो ऑफ कोर्स हर जगह ये है, पाकिस्तान के मुआशरे में ये है, तो फिर जाहिर सी बात है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ये है। बिल्कुल मारिया, और ये मुआशरे से निकल के ही फिर जहाँ जहाँ हम काम करते हैं, ये वही सोच जो है हमारी वर्क प्लेसेस से ही पहुँचती है। अच्छा, आप खुद भी ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है। जो वर्क प्लेस हरासमेंट होते हैं वो ना सिर्फ वो ख़वातीन जो कि हरासमेंट से गुजर रही होती हैं, बल्कि खुद उस वर्क प्लेस के लिए कितना ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक माहौल पैदा हो जाता है इस वर्क प्लेस में।
एक वर्क प्लेस एनवायरनमेंट को अच्छा बनाना, उसकी तमाम जिम्मेदारी जो है वो मैनेजमेंट के ऊपर होती है। डायरेक्टली मैं ये कहूँगी इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो है वो मैनेजमेंट का होगा। एक तो ये कि वो शुरू में ही तमाम लोगों को बावर करा दे कि अगर इस तरह की कोई शिकायत आई तो उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी और किसी ना को सज़ा ज़रूर दी जाएगी, ताकि बाकी लोग जो हैं वो उनको मालूम हो कि ये दिस नॉनसेंस कैन नॉट कैरी ऑन। दूसरी बात ये है कि आप जितना ज़्यादा ख़वातीन को वर्क फोर्स में लाएंगे ना, तो जेंडर सेंसिटिव माहौल पैदा होगा। फॉर एग्जांपल, ख़वातीन अगर आएंगी, ज़्यादा ख़वातीन न्यूज़ रूम्स में होंगी, फील्ड में होंगी, या जिस भी शोबे में अगर वो ब्रॉडकास्टिंग के हैं, किसी भी अगर एक डिपार्टमेंट में है, तो वो एक बड़ा बैलेंस सा माहौल बनेगा। अच्छा, जब वो प्रमोट होंगी या वो ऊपर पोजीशंस पर जाएंगी, मैनेजरियल पोजीशंस पर जाएंगी, या न्यूज़ रूम में वो डायरेक्टर्स बन सकती हैं या वो सीनियर प्रोड्यूसर्स बन सकती हैं, तो वो अपने साथ वो जो कल्चर है ना, उसको फिर ऊपर मैनेजरियल रोल के अंदर लेकर आती हैं। सो इसमें बड़ा जरूरी है कि मैनेजमेंट खुद क्या तयन करती है कि आज से 5, 6, 7 साल बाद हमारे दफ्तर का माहौल क्या होगा, क्या ये खवातीन के लिए साजगार होगा। क्योंकि बाज़ औक़ात मैं देखती हूँ कुछ कल्चर्स में ये भी होता है कि खवातीन वो इदारा छोड़ के चली जाती हैं, वहाँ पे बिल्कुल कोई चेंज नहीं होता, ना रवैयों में, ना रूल्स में, ना किसी किस्म के वहाँ पर कोई ऑडिट होता है, ना वहाँ पे कोई इंट्रोस्पेक्शन होती है कि भाई क्यों इतनी बड़ी तादाद में खवातीन हमारे छोड़कर जा रही हैं काम, क्या वजह है, क्या हमारे इर्द गिर्द हम ऐसे लोगों को एम्पावर तो नहीं करते कि जो इन लड़कियों का यहाँ पे काम करना हराम बनाए। तो द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन मैनेजमेंट। सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द मैनेजमेंट। अच्छा, ये तो आपने अपने मैनेजमेंट के हवाले से जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपका बिल्कुल वैलिड है। ये जो मामला जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, जिसमें एक खातून सामने आती हैं, अपना क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट कोर्ट में खुद देती हैं, अपनी लीगल टीम के साथ मशावरत करती हैं और उसके बाद वो केस जीतती भी हैं, ये इसको आप क्या, इसके ऊपर आपका क्या कमेंट है? क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन इतनी हिम्मत नहीं करती और अपनी एनवायरनमेंट में जो है ना वो थोड़ा बहुत जो है ना वो कंफ्यूज हो जाती हैं, तो इस पे आपका कमेंट चाहूँगा। उनको 2 साल मुकदमे का सामना करना पड़ा। इवेंचुअली उन्होंने अपना केस जीत लिया, लेकिन अभी एक केस जीता, दूसरा केस जो बाकी है वो उतना ही, पता नहीं कितना वक्त लगेगा बेचारी को। वो जाती थी वहाँ पे अदालत में, कभी वकील नहीं होता था, कभी कोई नहीं आया होता था, तो उसको मुकदमे पे तारीख कौन इतनी पेन लेता है, मुझे बताइए इस माशरे में। और बीइंग अ वुमन, आप मुझे बताइए कि कितने लोगों की फैमिली सपोर्ट स्ट्रक्चर उनके साथ होता है। अगर आप एक ऐसी खातून है जिनकी अभी शादी नहीं हुई, आप एक मैरिजेबल एज में है, तो फिर कौन हमारे माशरे में ऐसी खवातीन के साथ रिश्ता जोड़ना चाहता है। हालांकि ये एक बड़ा एडमिरेबल ट्रेट है कि एक लड़की जो अपने हक के लिए खड़ी हुई है और उसने जैसे तैसे मारिया, अच्छा ये बताएं, इसको डील कैसे जा सकता है, किस तरीके से हम खातून को जो कि केस लड़ी उनको इतनी हिम्मत दें कि वो लड़ सकें इस हवाले से? आखिरी सवाल है ना, ये एक्चुअली मेरे दिल के बहुत करीब है कि बहुत सारी हरासमेंट की जो बातें वो तुम प्रूव ही नहीं कर पाते। जब मी टू की मूवमेंट आई थी ना, इसीलिए खवातीन के साथ फौरन से पहले इसने रेजोनेट की और सबने कहा जी मी टू, हमारे साथ भी जिंदगी में किसी ना किसी मौके पे कोई कुछ ऐसा हुआ है। जरूरी नहीं कि कोई बहुत शदीद, कोई बहुत इंटेंस इनकाउंटर हुआ हो, कभी कोई जुमला कसना, कोई नाजेबा आवाज लगा देना, खाली नजरों से आपको अनकंफर्टेबल कर देना, इशारों से, कभी कभी हाथ भी लगाते हुए गुजर जाना, ये चीज आप प्रूव नहीं कर सकते। या आप किसी मुआशरे में भी कहीं चलते हुए भी कोई आपको हरास करेगा, आप प्रूव नहीं कर सकते, तो आप कॉर्पोरेट कल्चर में कैसे प्रूव करेंगे? अच्छा, फिर यहाँ पे ही सेड शी सेड के ऊपर बात आ जाती है और अल्टीमेटली जो मर्द हजरात है उनकी बात तो मानने के लिए फौरन मुआशरा तैयार हो जाता है कि ये ठीक कह रहा होगा, शायद ये लड़की झूठी है। लेकिन खवातीन पे यकीन करने वाले बहुत कम लोग हैं और फौरन क्वेश्चन करते हैं उनकी इंटेंट को कि ये क्यों इस पे इल्जाम लगा रही है, ऐसी क्या वजह है। तो कैसे प्रूव करें? अच्छा, अदालत ले जाएं, वहां पर वकील के सामने, क्या उस प्रोसेस से गुजरना चाहते हैं? अगेन, क्या कोई जो हरास करता है वो इतना बेवकूफ है कि वो 4 गवाहों के सामने हरास करेगा या 4 गवाहों के सामने जो है वो अपने पक्का कर लेगा कोई? एग्जैक्टली मारिया, द प्रोसीजर इज रियली लॉन्ग और इसमें हमें ये भी लगता है कि जो विक्टिम है हिम्मत भी हार जाता है, क्योंकि आप हर एक को एक ऑलरेडी आप एक प्रॉब्लम से, जब आप हरासमेंट का शिकार होते हैं तो आप एक नफ्सियाती दबाव से भी गुजरे होते हैं, आप ट्रॉमेटाइज भी होते हैं। और ऐसे फेज में शफात, जब आप बार बार लोगों को अपनी पोजीशन जस्टिफाई करें और आप बताएं कि मुझे एग्जैक्टली किन किन चीज़ों की वजह से मैंने फील किया कि मैं हरास हुई हूँ, ये तो मजीद उसकी परेशानी में इजाफा कर देने वाली बात है। एक बहुत बड़ी कंटिजेंसी जिसकी तरफ मारिया ने भी इशारा किया, हार्डकोर एविडेंस नहीं होता, सॉलिड एविडेंस नहीं होता। जाहिर है, जैसे मारिया ने भी इशारा किया, कोई आदमी इतना पागल तो है नहीं कि 4 गवाहों की मौजूदगी में जो है वो एक खातून को हरास करेगा, उसको ताड़ेगा या उसको अनकंफर्टेबल फील कराएगा। ये काम डेफिनेटली ऐसे माहौल में, ऐसी जगह पर किया जाता है जहां पर जो है वो सबूत ना छोड़ा जा सके, और यही मसला है जिसकी वजह से वर्क प्लेस हरासमेंट इंडोर्स हो जाती है। जो लोग हरासर्स हैं उनको लगता है कि वो अनटचेबल्स हैं। ज़रूरत इस बात की है
کہ خواتین کی بات کو سنا جائے اور ان کی انٹینٹ پہ شک نہ کیا جائے.